Assalamu alaikum students, hopefully all of you are going well. So in today's class we will be discussing a couple of questions of inequalities that are the part of past papers. So before starting that, let me discuss few things about integers. What are integers and how many types of integers do we have? Simply, if we talk about integers, integers are simply whole number values if I'm saying whole number values, so भाई एक बात तो for sure होगी ना, they are not in decimal nor in fractions. It means the value that are whole number values, obviously if I'm talking about whole number values, so those values won't be in decimal and obviously not in fraction. So integers are mainly of two types. Either you are having a positive integer values refers to positive whole number values जैसे 1, 2, 3 and so on. And if we talk about second type, that is negative integer, so negative integer simply refers to -1, -2, -3 and so on. So all of the following numbers are categorized in negative integers. There is one more category that we used to write separately, that is 0. What is 0? 0 is simply categorized as non-sign integer. इसको हम normally non-sign integer की category में categorize करते हैं. What do we actually mean by non-sign integer? Non-sign integers are the integers having no sign. 0 के साथ आप positive sign लगाएं, negative sign लगाएं, obviously that results in 0. So 0 is considered in a category of non-sign integer. Now moving on, couple of past paper question कि examiner आगे पास situation क्या देता है and how that situation is actually related to integers. अब उसकी बात करते हैं. I have couple of past paper questions for you. One by one ज़रा 2-3 questions को discuss कर लेंगे तो you guys will be clear. In the following situation, you have been asked to find the or solve the inequality. In the first question, equality की condition given है that you have to solve. अगर आप इस inequality को solve कर लें, it's simply like -5 2x plus 3 lesser than 1. And this question is actually related to combined inequality. Combined inequality का मतलब ही ये होता है कि first of all you are supposed to divide the inequality into two parts. The first one and the second one. So this is the first part of the inequality. This is your second part of the inequality. मुझे बता दो, when 3 is shifted right here becomes -3. 5 minus 3 हो जाएगा. Here you are having 2x. 5 minus 3 results in -8. That is 2x. Finally -8 divided by 2 is greater than x and the value of x is greater than -4. This is what's the result after simplification. Second part of inequality को solve करोगे, so this 3 has to be shifted right here, becomes 2x. Sign of inequality 1 minus 3. 1 minus 3 is after simplification will be -2, or after simplification the value of x comes out to be -2 divided by 2. -2 को 2 से divide कर देंगे, the value of x will be -1. After finding both the answers, now lastly what you are supposed to do? You are supposed to convert the following inequality that is coming separately into a combined one. Question में combined equality given थी तो आंसर भी combined inequality फॉर्म में आना चाहिए. combined equality फॉर्म में आने का मतलब ये, the value of x is greater than -4, however it is lesser than -1. So this is the answer and final answer for the following situation. Now the important thing is, what if I ask you to write the all integer values for the following equality? An additional question, भाई एग्जामिनर ने फर्स्ट पार्ट में तो आपसे यही कहा था ना कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वालिटी. यू हैव सॉल्व द फॉलोइंग इक्वालिटी एंड आंसर कम्स आउट टू बी दिस वन. व्हाट इफ आई आस्क यू टू राइट ऑल द इंटीजर वैल्यूज दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, तो उसमें आप क्या लिख रहे होंगे? इफ यू आर गोइंग टू राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, दैट विल बी लाइक दिस. x की वैल्यू -4 से ग्रेटर है, -4 से ग्रेटर वैल्यू विल बी -3, -2, -1, -1 के बाद you are having 0 and so on. But on the following condition, the value of x is greater than -4, however lesser than -1.
तो -1 और उससे लेसर करें, उससे ग्रेटर करें, तो यू विल एंड अप बाय गेटिंग द फॉलोइंग टू इंटीजर वैल्यूज़. इफ़ आई आस्क यू एन एडिशनल पार्ट, दैट इज़ मुझे बता दो इस इनइक्वालिटी को कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी. बिकॉज अगर मैं इंटीजर के अलावा बात करूँ तो दे आर इनफाइनाइट नंबर्स ना, मतलब -3.9 भी इसको सेटिस्फाई करेगी. यस और नो? इंटीजर वैल्यूज़ में दीज आर द नंबर्स. बिकॉज अगर इसी बात को समझने के लिए आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, सो नंबर लाइन ऐसी होगी ना कि दिस इज़ -4, दिस इज़ -2, और ऑब्वियसली -4 से ग्रेटर है. इन द फॉलोइंग सिचुएशन जो वैल्यू ऑफ x है, द वैल्यू ऑफ x इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन -4, हाउ एवर इट इज़ लेसर देन -1, सॉरी नॉट 2, दिस इज़ -1. तो अगर आप -1 से लेसर कर रहे हैं और इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ कर रहे हैं, सो दिस इनइक्वालिटी विल लुक समवॉट लाइक दिस. फाइनली नंबर लाइन ऐसी कुछ दिखेगी. द फॉलोइंग रीजन विल बी द रीजन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन. और -4 और -1 के बिटवीन आने वाले नंबर इस -3, -2, और -1 के बाद नंबर लिख लेंगे यू आर हैविंग 0, -4 से पहले नंबर लिखेंगे -5. तो फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग टू इंटीजर वैल्यूज़ आर द इंटीजर वैल्यूज़ दैट आर सेटिस्फाइंग और द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. मुझे बता दो -3, -2 टू इंटीजर वैल्यूज़ आ रही हैं. ये एक एडिशनल पार्ट है जो मैंने आपको बताया. आपका आंसर वॉज अप टिल हेयर. ये एडिशनल पार्ट अब मैंने बताया क्यों है. अब फाइनली क्वेश्चन रीड करते हैं. देखिए, एग्जामिनर नॉर्मली गिव यू द सिचुएशन. इन द फर्स्ट पार्ट दे आस्क यू टू सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड you have solved the inequality as per the given condition. Later on they are asking you to write down the least integer x which satisfy the value. वही इनइक्वालिटी को दोबारा लिखा एग्जामिनर ने, और दे आर आस्किंग यू अबाउट द लार्जेस्ट इंटीजर. समटाइम दे आस्क यू अबाउट द लीस्ट इंटीजर, समटाइम दे आस्क यू अबाउट द लार्जेस्ट इंटीजर. इन द फॉलोइंग सिचुएशन दे आर आस्किंग यू अबाउट द लार्जेस्ट इंटीजर. मुझे बता दो इस इनइक्वालिटी के लिए इंटीजर वैल्यूज़ क्या थी. You will end up by getting the following two integer values. If I ask you which is larger, -2 or -3, obviously you will be saying like -2 is the largest integer. तो भाई इस पार्ट का डायरेक्टली पता है आंसर क्या होगा. These are only 1 mark question in which you are supposed to directly write the answer. तो largest integer that satisfy the following inequality is simply negative 3. -3 I guess, sorry -2. तो लार्जेस्ट इंटीजर फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ -2. और लार्जेस्ट इंटीजर आप तभी लिख पाओगे जब आप उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर चुके होगे. होपफुली ऑल ऑफ यू आर क्लियर अप टिल हेयर. ऐसी बात को समझाने के लिए अगेन मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ. क्वेश्चन इज़ लाइक दिस. दिस इज़ 2x माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड आई एम आस्किंग यू सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x. Part number 2, draw number line. Part number 3, write smallest integer value. स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू लिख दो फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन. भाई एग्जामिनर आपको स्मॉलेस्ट क्या आएगा, एग्जामिनर आपको लार्जेस्ट क्या आएगा, वॉट एवर दे आस्क यू टू राइट, आप अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन के लिए उस वैल्यू को ईजिली लिख देंगे. तो फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन हम पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व तो कर लें. फॉर सॉल्विंग द फॉलोइंग इनइक्वालिटी आई एम राइटिंग इट सेपरेटली. दिस इज़ 2x माइनस का 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. व्हेन -1 शिफ्टेड राइट ऑन द right hand side becomes 2x greater than equals to 3 plus 1. 3 plus 1 after simplification becomes 4. This is you are having 2x and the value of x is greater than equals to 4 divided by 2. 4 divided by 2 after simplification comes out to be greater than equals to 2. तो भाई पहला पार्ट तो you have solved, that find the value of x, और inequality को आपने सॉल्व करके x की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया. Second part is simply related to number line. So drawing a number line is not a big deal. You have marked 2 right here. Since the value of x is greater than 2 and not greater than 2 equals to beta, so the circle must be shaded. आपने उस circle को भी shade कर लिया. तो first part number 1 done, part number 2 done. Now they are asking you to write the smallest integer value of n. मुझे बता सकते हो कि वो कौन कौन सी x की वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करी हैं. सिंस द आंसर कम्स आउट टू बी x इज़ ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 सिंपली मीन्स दैट कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर और 2 के बराबर होगी. तो x की इंटीजर वैल्यू कुड बी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. येस और नो?
ये सारी ही वैल्यू एक्सेप्टेबल हो सकती हैं. इफ़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, इट सिंपली मीन्स दैट इस सिचुएशन के लिए इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग यू अबाउट द लीस्ट इंटीजर वैल्यू, तो लीस्ट इंटीजर वैल्यू कम्स आउट टू बी 2. तो आंसर फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन विल बी 2. लीस्ट इंटीजर वैल्यू, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू कम्स आउट टू बी 2. होपफुली ऑल ऑफ यू आर क्लियर अप टिल हियर. अब एक स्टाइल का एग्जामिनर नॉर्मली आपको क्वेश्चन और दे रहा होता है, अब उसकी वर्डिंग की बात कर लेते हैं. इन द फॉलोइंग सिचुएशन एग्जामिनर हैज़ गिवन राइट डाउन द डेसिमल वैल्यू ऑफ एन विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी. डेसिमल वैल्यू लिखनी है भाई. डेसिमल वैल्यू फर्स्ट इस इनइक्वालिटी को रीड करना सीखो, इस इनइक्वालिटी को. These type of questions are again of 1 mark, 1 mark question, 1 mark question. मुझे बताओ if examiner has given you the following situation, 1/4 का मतलब क्या होता है in decimal. 1/4 in decimal obviously refers to 0.25 and 3/4 इससे lesser, तो 3/4 simply refers to 0.75. अगर इन दोनों ही वैल्यूज़ को आपने रेंज लिख दी है और उस रेंज को आप अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना चाहते हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड टू राइट द डेसिमल वैल्यू ऑफ एन विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी. अब मुझे खुद ही सोचते समझते बताओ कि इज़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर, वैल्यू ऑफ एन इज़ ग्रेटर दैन 0.25 हाउएवर लेसर दैन 0.75, इसके बिटवीन कौन सा नंबर लिख सकते हो. कैन यू राइट इन आंसर 0.26, येस और नो. कैन यू राइट इन आंसर 0.5, कैन यू राइट इन आंसर 0.7. यार कोई भी वैल्यू दैट वैलिडेट द फॉलोइंग कंडीशन, ऑल ऑफ द वैल्यूज़ आर एक्सेप्टेबल. आपके फ्रेंड का आंसर डिफरेंट हो सकता है बट ऑल द वैल्यूज़ दैट लाइज बिटवीन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी द आंसर ऑफ द पार्ट ए. In part B, they are asking you to write down the fraction value of n which satisfy the inequality. भाई डेसिमल वैल्यू डिसाइड कर ली तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मसला है, बात समझो. फॉर एग्जाम्पल समवन हैज़ रिटन 0.7, फॉर एग्जाम्पल समवन हैज़ रिटन 0.7, तो 0.7 को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 0.7 इन फ्रैक्शन विल बी, इफ़ यू शिफ्ट डेसिमल 1 डिजिट फॉरवर्ड, यू विल बी राइटिंग 7/10. तो भाई क्या 7/10 एक फ्रैक्शन वैल्यू है? हाँ. क्या 7/10 lies in the following range? Any number that lies in the following range, any number that lies in the following range is the answer for the following situation. Hopefully I am clear. For example, किसी ने 0.5 वैल्यू कंसिडर की हो, for example someone has considered the value 0.5, तो they are writing 0.5 like this. 0.5 का डेसिमल 1 डिजिट फॉरवर्ड करोगे, that comes out to be 5/10. After simplification that comes out to be 1 divided by 2. This times 1 are, this times 2 are. तो this will be your final answer. भाई कोई भी एक आंसर लिखोगे, रश लगाने की ज़रूरत नहीं है. No need of writing many values. If you have written the decimal value this, fraction value आप 1/2 लिख दें, that's fine. Someone has written 0.7, तो fraction value 7/10 लिख दें, that's fine. तो ये normally conditions होती हैं. Agree? Am I clear? अच्छा, one time examiner has asked the following condition like part C. Write the number that is in between them. दो नंबर के बिटवीन में आने वाला इन इक्वालिटी जो गिवन है, यू आर सपोज टू राइट द नंबर दैट इज़ इन बिटवीन दैम. इन बिटवीन दैम का मतलब हुआ यू आर सपोज टू राइट अ नंबर दैट लाइज इन बिटवीन द फॉलोइंग सिचुएशन. इन बिटवीन द फॉलोइंग सिचुएशन में लिखने वाले नंबर का मतलब क्या होगा, आप इन दोनों ही वैल्यूज़ का एवरेज कैलकुलेट कर लें. इन बिटवीन नंबर इज़ एक्चुअली द एवरेज ऑफ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू. इन बिटवीन नंबर कैलकुलेट करने के लिए भाई स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू इज़ 1/4, स्टार्टिंग वैल्यू इज़ 1/4, एंडिंग वैल्यू इज़ 3/4. हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द एवरेज? किसी भी नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना तो दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, यस और नो. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एवरेज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द नंबर इन बिटवीन दैम, इट मीन्स यू आर सपोज टू फाइंड द एवरेज. एवरेज का मतलब दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो. कैसे करोगे? सिंपली इफ़ यू टेक द एलसीएम फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, दिस विल बी 1 + 3 ओवरऑल डिवाइडेड बाय 4. एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम. दिस कंप्लीट वैल्यू इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो मैं डिवाइडेड बाय 2 लिख देता हूँ, यस और नो. व्हेन दिस डिवाइड साइन कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, दिस 2/1 कन्वर्टेड इनटू 1/2. 1 + 3 comes out to be 4 divided by 4. 4 and 4 cancel with one another. Finally answer comes out to be 1/2. This is the number
दैट इज़ इन बिटवीन देम और इन बिटवीन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो पार्ट सी का आप इस तरह से आंसर लिख देंगे। सो होपफुली ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट द फॉलोइंग कंडीशन। इंटीजर्स की जब भी बात करेगा आपके पास ये सिचुएशन होगी। लीस्ट की बात करेगा, इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, लीस्ट लिख देंगे, ग्रेटेस्ट लिख देंगे। सो होप